Listeners, welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद सरबजीत। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताज़ा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ विशाल दहिया। दहिया जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार सोनू जी, धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के साथ है सरबजीत कौर। Benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex drops over 320 points. Nifty closes at 23,250. Major Asian indices close in negative territory and European indices trade with deep cuts following US President Donald Trump's announcement of new tariffs. India and Thailand signed 6 agreements in various fields during bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and his Thai counterpart in Bangkok. And global crude oil prices plunge over 5%. Brent crude trades at $70.61 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली गिरावट में। सेंसेक्स 320 अंकों से अधिक गिरा। निफ्टी 23,250 पर हुआ बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नए शुल्कों को लेकर घोषणा के बाद प्रमुख एशियाई बाजारों में आई गिरावट और यूरोपीय सूचकांक भारी नुकसान पर चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री के बीच बैंकॉक में हुई द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भारत और थाईलैंड ने विभिन्न क्षेत्रों में 6 समझौतों पर किए हस्ताक्षर। और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों ने 5% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की। ब्रेंट क्रूड $70.61 प्रति बैरल पर था। US President Donald Trump has announced reciprocal tariffs on several countries, including India. In a press conference at the Rose Garden in the White House, Mr. Trump said the tariffs will not only be fully reciprocal, and the US will charge countries around half of the levies they put on Washington. He said the US will calculate the combined rates of all tariffs, including non-tariff barriers, and charge them approximately half of what the countries have been levying on the US. Meanwhile, India is carefully examining the implications of 27% additional duty imposed by the US. Ministry of Commerce and Industry in a statement today said that the department is engaged with all stakeholders, including Indian industry and exporters, taking feedback of their assessment of the tariffs and assessing the situation. The department is also studying the opportunities that may arise due to this new development in the US trade policy. The US President Donald Trump issued an executive order on reciprocal tariffs, imposing additional ad valorem duties ranging from 10% to 50% on imports from all trading partners. The baseline duty of 10% will be effective from 5th of April, and the remaining country-specific additional ad valorem duty will be effective from 9th of April. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित कई देशों के लिए पारस्परिक टैरिफ के फैसले का प्रभाव का विश्लेषण और आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए उपायों को निर्धारित करेगी। श्री चौधरी ने नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए नीति अमेरिका प्रथम है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीति है भारत प्रथम। क्या कहेंगे आप विशाल जी, जो ये अनाउंसमेंट आई है जिसकी कहें कि हफ्तों से महीनों से सबको आशंका थी, इंतज़ार था, फाइनली जब ये अनाउंसमेंट आई है तो अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इसके ब्रॉड क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये आपने सही कहा सोनू जी के ये एक ऐसी घोषणा है जिसका इंतज़ार हफ्तों से लगातार हो रहा था, बल्कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का
पदभार संभाला है अमेरिका में, तब से, क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान भी इन सब बातों का जिक्र किया था। और जो दुनिया की इकोनॉमीज़ हैं, जिनमें से भारत की भी एक अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था है, सब इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह का फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है। एक यहाँ पर मैं अच्छी बात कहूँगा वो ये है इस फैसले में कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ कहा कि हम केवल 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि इससे पहले जो बातचीत हो रही थी और जिस तरह के बयान आ रहे थे अमेरिकी सरकार की तरफ से, उसमें 100% रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही थी, टिट फॉर टैट की बात हो रही थी। लेकिन शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना हाथ इसमें थोड़ा सा रोका है, नंबर एक। नंबर दो, अगर भारत के लिहाज से इसे देखा जाए तो 27% के जिस आंकड़े की तरफ हम देख रहे हैं वो इसे मैं कहूँगा एक रिकैलिब्रेशन ऑफ स्ट्रेटजी की तरफ हमें ज़रूर ले जा सकता है। शायद भारत की इकोनॉमी के पास, भारत की सरकार के पास ये एक मौका है कि जब दुनिया की कई इकोनॉमीज स्थिति को एक क्राइसिस के रूप में देख रही हैं, इसे शायद हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख पाएँ। हालांकि अभी भारत सरकार का क्या विस्तृत रिस्पांस होगा वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान आए हैं उनसे ये साफ होता है कि अच्छी तरह से देख परख के तब इस पे किस तरह का जवाबी अगर कोई कार्रवाई की ज़रूरत है तो वो की जाए, या फिर इसका जो अलग अलग सेक्टर्स हैं भारत के उन पे क्या असर पड़ेगा, उसमें कैसे मदद की जा सकती है, उन सेक्टर्स में जो ऑपरेट कर रही हैं कंपनीज उनको कैसे राहत पहुंचाई जा सकती है, उस पर एक विस्तृत फैसला जो है आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मोटे तौर पर थोड़ा सा जिसे कहा जाए एक डर का माहौल जो पैदा हो रखा था, मुझे लगता है कि भारतीय शेयर बाजारों ने आज जिस तरह से परफॉर्म किया है उससे एक अंदाज़ा हमें ज़रूर लगता है कि शायद हमारी जो अर्थव्यवस्था की मजबूती है वो हम जितना आंकते हैं उससे थोड़ा सा और मजबूत है। So Vishal, taking a cue from just what you said, there's always a very thin line of difference between taking a circumstance as an opportunity or as a crisis. US being India's largest export market and American buyers having put fresh orders from India on hold in the light of Trump's announcements. How do you see these steps in the light of the Indian economy? Well, this Liberation Day announcement, Yes. which has come in from President Trump on the reciprocal tariffs, was in offing for quite some time. But the reason, and I'll answer the second part of your question first, the reason why, some of the export shipments are either on hold or, the exporters have been asked by the, U.S. Consumers, U.S. companies which are importing it, our stuff, our merchandise, to, go slow is because of the lack of clarity. Lack of clarity in terms, there was a press conference yesterday, the White House came up with a document as well, but there's a bit of a lack of clarity for both parties, for the importer and for the exporter as well, as to how will this play out. Who will end up, finally bearing the brunt of the excess tariffs, which in fact, the US markets have shown more reaction. Yes, more reaction there. So that is why ultimately, because your US economy, if you take a deeper look into that, is a very deeply consumeristic economy. A lot of consumerism there. And if you look at it from President Donald Trump's perspective, it looks like he wanted to send a message to his domestic constituents as well. More to the domestic constituents, less, I believe, to the global audience there. Countries like China or maybe India or Thailand or Vietnam as well. Of course, countries like China, Thailand, Vietnam are taking a larger brunt of this decision because of the fact that their trade policies and their tariff policies were much more stringent vis-a-vis US when we do a comparison with the Indian tariff policies. But a sectoral-wise analysis, point number one. Point number two is how will this play out in terms of the implementation part. And point number three,
how will the government, the Indian government, go ahead and put forth its own decisions So indeed, much is awaited. in terms of the tariffs. Those are the things which are yet to play out, and once they are settled down, we'll see that a lot more clear picture will emerge. But as I was saying earlier to Sonuji's question, that the response of the Indian market, and you do a comparative analysis with the response from other Asian markets, European markets, even the US market which you mentioned, that clearly shows that the resilience of the That's Indian right. economy, the strength of the Indian economy is much stronger, much deeper than perhaps we or the economists are analyzing right now. विशाल जी, अगर हम बियर द ब्रंट की बात करें, आपने ये अभी यूज किया था ये फ्रेज, अगर माइक्रो लेवल पे हम देखें तो जब ये टैरिफ्स इम्पोज हो रहे हैं तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स, वो इस टैरिफ को क्या वो कंपनीज बियर करेंगी पूरा, आपको लगता है, या पूरा पास ऑन कर देंगी कंज्यूमर्स को, या पार्टली होगा? सो आपको लगता है कि जो कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं हिट होगी और शायद कंज्यूमर्स के लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगी? किस तरह का आप देख रहे हैं? देखिए, यही एक वो एस्पेक्ट है सोनू जी जिस पे अभी पूर्ण रूप से क्लैरिटी नहीं आ पाई है। इसी वजह से कुछ शिपमेंट्स होल्ड पे हैं या उनको रोक दिया गया है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन होगा तो 2 अप्रैल के बाद फैसला आना था, आज 3 अप्रैल है, 5 अप्रैल से लागू होगा। तो ये जो पहलू है कि कौन इसको बेयर करेगा, इसके 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि सरकारें जो दोनों तरफ की हैं वो जो नीतियां बना रही हैं वो क्या आधिकारिक आदेश निकालती हैं, और दूसरा एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, यानी कि अगर मैं यहाँ से भारत से कोई सामान भेज रहा हूँ और आप अमेरिका में उसको रहकर उसे इंपोर्ट कर रही हैं, तो हम दोनों के बीच क्या सहमति होती है कि वो जो उस पे दोनों देशों को या किसी एक देश को जो टैक्स हमें देना है वो टैक्स हम आपस में किस तरह से उसका बंटवारा करेंगे, और क्या उसका कुछ हिस्सा हम एंड कंज्यूमर को भी पास ऑन करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो जो क्लैरिटी है जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, उसमें अभी मुझे लगता है कि और थोड़ा सा 2-4-5 दिन का समय लगेगा, लेकिन वो क्लैरिटी आने के साथ ही चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन होनी ज़रूर हो सकती हैं। हाँ, इस फैसले से जिसे कहा जाए कि एक प्रोटेक्शनिज्म जिसे कहा जाए, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म से कहा जाए, उसकी बात ज़रूर कुछ इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हर देश को, हर इकोनॉमी को ये अधिकार ज़रूर है कि भाई वो ये तय करे कि साहब हम अपनी चीज़ों पे जो टैक्स दे रहे हैं आपको, तो आपसे जो ले रहे हैं उस पर हम कितना टैक्स लगा सकते हैं। और व्यापार हमेशा नेगोशिएशन से ही होता है, तो मुझे लगता है कि नेगोशिएशंस का रास्ता जो है हमेशा खुला रहेगा। व्यापार का दूसरा नाम ही नेगोशिएशन। और जैसे वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नीति है अमेरिका फर्स्ट, तो हमारे लिए नीति है इंडिया फर्स्ट। अभी आपने यू मेंशन दैट चाइना का 54% है, वियतनाम का 46% अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ है, कंपेयर टू इंडियाज 27%। सो क्या हमें इससे कुछ कॉम्पिटिटिव एज मिलता है? आपको लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए? और दूसरा इसका जो पहलू है, आपको लगता है कि क्या चीन और वियतनाम जैसे देश यूएस को छोड़कर क्या बाकी देशों की तरफ अपने सामान भेजने का जो विकल्प है उसकी तरफ गौर कर सकते हैं जैसे भारत है, और उससे हमारे यहाँ डंपिंग का कोई खतरा पैदा होता है? देखिए, एंटी डंपिंग पॉलिसीज ऑलरेडी भारत सरकार ने जो लगाई हैं, जो लागू की हुई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, और बहुत इफेक्टिव भी हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। नंबर 2, इनमें से जिन देशों का आपने जिक्र किया, और ये जो सामान अमेरिका को निर्यात करते हैं, उन सामानों की कैटेगरी में कुछ तो ऐसे सामान हैं जिसमें हम उनके कॉम्पिटिटर हैं, और कुछ ऐसे सामान हैं जो कि हम भी उनसे निर्यात करते हैं। तो हर देश, हर इकोनॉमी ये चाहती है कि उसको कोई नया बाजार मिले, और ऐसा बाजार मिले जहां पर उसे टैक्स कम देना पड़े और उसके माल की खपत ज़्यादा हो। तो जाहिर तौर पर चीन हो या वियतनाम हो या थाईलैंड हो या कोई और देश हो, कोई और इकोनॉमी हो, वो ज़रूर नए बाजार के तौर पर एक बार भारत की तरफ ज़रूर देखेंगे। ये हमारे लिए चांस भी, अपॉर्चुनिटी भी है और चुनौती भी है।
अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि भारत एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है, विश्व के लिए एक बड़ा बाजार है। ये एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, नंबर एक। और नंबर दो, अगर हम इसको इस लिहाज से देखें कि ये जो बाकी देश हैं ये किस तरह सोचते हैं, हालिया बयान अगर चीन की तरफ से जो आए हैं उनको अगर आप फौरी तौर पर उन पर गौर करके देखें तो सीधे तौर पर यह पता चलता है कि चीन के सुर में बदलाव आया है। और वो बदलाव आना लाजमी भी है क्योंकि उनको भी अपने माल के लिए, अपने सामान के लिए कोई बाजार देखना है। और जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, तो ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और भारत सरकार के लिए इंडिया फर्स्ट है। बिल्कुल, आपने अभी बताया था कि कैसे हमारे जो बाजार हैं उन्होंने मजबूती दिखाई है, जो एक संकेत दिखा रहा है कि भारत शायद इस चुनौती को काफ़ी मजबूती के साथ झेल पाएगा। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज सामान्य गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्कों की घोषणा के बाद आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ने की चिंताओं से आईटी और ऑटो क्षेत्रों में दबाव देखा गया, जिससे बाजारों में ये गिरावट आई। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.42% के नुकसान से 322 अंक कम होकर 76,295 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.35% की मंदी से 82 अंक गिरकर 23,250 पर दर्ज हुआ। हालांकि विस्तारित बाजार में तुलनात्मक रूप से मजबूती का रुख था और यहां बढ़त दर्ज हुई। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.3% से अधिक की बढ़त आई और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई। The benchmark domestic equity indices today ended with modest losses weighed down by the information technology pack and auto sectors due to growth slowdown concerns following US President Donald Trump's announcement of reciprocal tariffs. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex slipped 322 points or 0.42% to close at 76,295. The National Stock Exchange Nifty 50 dropped 82 points or 0.35% to settle at 23,250. Conversely, the broader market indices at the BSE displayed resilience. The mid-cap index added over 0.3% and the small-cap index advanced over 0.7%. In the Sensex index, 17 out of 30 companies ended in negative territory. Among the top laggards, TCS shed almost 4%, Tech Mahindra as well as HCL Tech both slipped over 3.7% each, and Infosys lost over 3.4%. Conversely, among the top gainers, Power Grid surged over 4.3%, Sun Pharma jumped over 3.2%, and Ultratech Cement gained over 2.9%. In sectoral indices at the BSE, 12 out of 21 sectors logged gains. In the top gainers, utilities rose over 2.4%, power as well as healthcare both added over 1.8% each, and telecommunication advanced more than 0.7%. Overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,813 companies advanced, 1,169 declined, and 141 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 37 companies hit their 52-week high, while 24 hit their 52-week low. Vishal, the stocks, yes, have shown resilience. Was this expected, or is it a happy, surprise to us post the tariff announcements? Very brief comment on this. Well, it is both a happy surprise and expected version. Because expected, I would say, in the sense, because if you look at a sectoral analysis, then looks like sectors like pharma, FMCG, they're not going to be affected in a very severe manner. Because of the tariff announcement by US President Trump. Of course, the performance of the IT sectors clearly indicate that they are the ones which are going to bear a major brunt of this entire situation. As of now, it looks so. So clearly, it was expected. But this overall performance of the market is a happy surprise for me, at least, because this shows that the resilience and the overall structural integrity of the Indian economy is much deeper, much better than perhaps we were analyzing in the weeks prior to the announcement, when every economist was on tenterhooks trying to analyze and figure out as to whether or not it will have a deeper impact on the Indian economy. And very briefly, इस जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुई है, इसका क्या कुछ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे असर पड़ेगा? रेट कट का क्या उम्मीद है आपको अगले सप्ताह? I would call it, Sonu ji, a long shot. ये थोड़ा सा
दूरदर्शी माना जा सकता है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी से पहले सरकार की क्या इसमें रेसिप्रोकल पॉलिसी होती है, किस तरह से सरकार उस पर रिएक्ट करती है डिटेल्स में, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एक पाथ सेट है, एक स्ट्रक्चर सेट है, तो उसमें उम्मीद तो हम जरूर कर रहे हैं कि कुछ राहत जरूर मिले, लेकिन क्योंकि प्राइसेस आप कह रहे हैं ना, इससे अफेक्ट हो सकते हैं प्राइसेस। हाँ, लेकिन वो इफेक्ट देखने में अभी हमें थोड़ा सा समय लग सकता है। और ये जो अगले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आना है, उसका बेसिस जो डेटा होना है, उस डेटा में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के आंकड़े बड़े ही राहत वाले हैं, तो उम्मीद है कि शायद कुछ राहत आरबीआई की तरफ से भी मिले। देखते हैं रुपए का कैसा प्रदर्शन रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत होकर 85 रुपए 44 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 101.95 पर था। लगातार डॉलर सूचकांक नीचे आ रहा है। इस जो फैसला है, ये जो टैरिफ्स आए हैं, वाइड रेंजिंग टैरिफ्स, उसका डॉलर की स्ट्रेंथ पर कुछ असर होगा? देखिए, जिस तरह से यूएस मार्केट्स और यूएस फ्यूचर्स ने रिएक्ट किया है, उस लिहाज से लगता है कि थोड़ा असर डॉलर की सेहत पर ज़रूर पड़ सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ एक और फैक्टर है, वो रहेगा कि यूरोपियन इकोनॉमीज़ जो हैं, ख़ासतौर पे यूरोपियन यूनियन, ईयू और चाइना भी, इनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन आता है जो रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी है, टैरिफ पॉलिसी है, उस पर अगर कोई बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आती है, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ सकती है, अगर कड़ी प्रतिक्रिया आती है तो थोड़ा सा असर ज़रूर देखने को मिल सकता है। उसमें महत्वपूर्ण ये होगा कि किस तरह से अमेरिकी सरकार और अमेरिकी बाजार दोनों उस स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। जी, आइए रुक करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विश्व भर के व्यापारिक भागीदार देशों पर शुल्क लगाने के बाद प्रमुख एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख आ गया। जापान का निक्केई सूचकांक 2.8% से अधिक लुढ़क गया। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.5% से अधिक की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7% से अधिक गिर गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक को 0.3% का नुकसान हुआ और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.24% का नुकसान दर्ज हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी प्रमुख सूचकांक तीव्र गिरावट में थे। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 2.9% से अधिक लुढ़क गया था। जर्मनी के डैक्स में 2.4% से अधिक की गिरावट थी और लंदन का फुटसी 1.6% के नुकसान पर था। And let's, of course, take a peep in the US markets. US stocks inched up on Wednesday, supported by surge in technology shares as investors made last-minute bets to position themselves ahead of US President Donald Trump's sweeping tariff announcements. The Nasdaq Composite rose over 0.8%, S&P 500 gained over 0.6%, and the Dow Jones Industrial Average increased over 0.5%. However, during Donald Trump's speech, which was delivered after Wall Street had closed, both S&P 500 futures and Nasdaq futures reversed their earlier gains as investors became increasingly apprehensive about Trump's sweeping tariff proposals. आपको लगता है कि ये बहुत आयरॉनिकल है कि जो यूएस में सबसे ज्यादा चिंता है, जिसके हित के लिए ये ऑस्टेंसिबली कदम उठाया जा रहा है, वहीं के जो कंज्यूमर्स हैं, वहीं की कंपनीज को सबसे ज्यादा नर्वसनेस है? देखिए, इसे आयरॉनिकल ज़रूर माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये देखने लायक है कि जो यूएस इन्वेस्टमेंट है वो ये सब कंट्रीज़, ये सब देश जिनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है, वहाँ बहुत ज़्यादा है। चाहे वो चीन का बाज़ार हो, भारत का बाज़ार हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो जो वो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, जो यूएस स्टॉक मार्केट में हैं, उनको भी चिंता है कि अगर उनकी इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव असर पड़ सकता है। रही बात उनके लिए कदम उठाया गया इकोनॉमी के लिए, तो ये इनका नतीजा शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐसी पॉलिसीज़ है जिनका नतीजा मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। और जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि मैंने कहा, हमेशा उसको एड्रेस करते हुए ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ रही हैं। ग्लोबल ऑडियंस को शायद ज़्यादा सुनाने के लिए, लेकिन डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ध्यान में रखते हुए बार बार वो कहते रहे हैं कि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका फर्स्ट है। तो इसलिए इस तरह की पॉलिसीज हमें देखने को मिलती रहेंगी। जी, लेते हैं अगली खबर। भारत और थाईलैंड ने सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, हस्तशिल्प और
हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेतोंग ताने शिनावात्रा के बीच बैंकॉक में आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और भारत थाईलैंड द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत थाईलैंड संबंधों को महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि थाईलैंड का भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में विशेष स्थान है। कल होने वाले 6ठे बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने प्रधानमंत्री 2 दिन की यात्रा पर थाईलैंड गए हैं। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक के निमंत्रण पर कल 3 दिन की यात्रा के लिए श्रीलंका जाएंगे। Earlier, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today urged the BIMSTEC member nations to approach the organization from a more ambitious perspective given the uncertainty and volatility in the current global order. Addressing the 20th BIMSTEC ministerial meeting in Bangkok, Thailand, Dr. Jaishankar said that the new order is intrinsically more regional and agenda specific. He highlighted that BIMSTEC represents the trifecta of India's 3 crucial initiatives: the Act East policy, the Neighbourhood First approach, and the Mahasagar outlook, while also being the pathway to the nation's Indo-Pacific commitment. He asked the members to direct their energies towards the most visible convergences such as power grid connections, digital infrastructure, business activities, maritime and land transport, blue economy or health, food and energy security. During the meeting, the BIMSTEC foreign ministers signed an agreement on maritime transport cooperation. Vishal, India's investment in BIMSTEC underscores its vision for a connected, economically integrated Bay of Bengal region. What's your expert comment on this, very briefly? Well, BIMSTEC is very important and very significant to India, and specifically India's Act East policy as well. And if you look at the past decade or so, then India has, moved very swiftly on its Act East policy. We've even, given a lot more impetus, a lot more focus to development in the northeastern region, because that's the gateway to most of these countries. And therefore, Prime Minister's visit, I would say, is very apt, very timely. Also, in the given changing global reordering or repositioning in all terms, be it trade, tariff, or other geopolitical situations, it is really, really significant that India has a pole position in its neighborhood as well, specifically in the neighborhood and in this region, BIMSTEC. That is why it is very important. We are engaging with other portions of our neighborhood at various levels. Similarly, BIMSTEC is one area, one region where we have to focus more, and that's what we are doing. Moving on to the next big story, oil prices plunged over 5% today amid concerns that US President Donald Trump's announcement of new tariffs will ignite a global trade war, impacting economic growth and limiting fuel demand. Brent crude was trading almost 5.8% down at $70.61 per barrel. WTI crude was also trading over 6% down at $67.33 per barrel when reports last came in. उधर सराफा बाजार में सोना आज बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 89,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 5.6% गिरकर 99,520 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 1.61% गिरकर 89,390 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मई 2025 में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 5.55% गिरकर 94,214 रुपए प्रति किलो पर था। समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल जी, आप आए और आपने विभिन्न विषयों पर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सोनू जी, थैंक यू। And listeners, before we wrap up today's edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with modest losses. Sensex drops over 320 points. Nifty closes at 23,250.
Major Asian indices close in negative territory and European indices trade with deep cuts following US President Donald Trump's announcement of new tariffs. India and Thailand signed 6 agreements in various fields during bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and his Thai counterpart in Bangkok. And global crude oil prices plunge over 5%. Brent crude trades at $70.61 per barrel. And that's it in today's edition of Market Mantra. Goodbye.